We need to enjoy the joy of salvation. और हमें उद्धार के आनंद का आनंद. Now the word joy actually is a noun. और pardon me. The word joy is a noun. और noun. N-O-U-N, noun. नाउन है, संज्ञा है. Yeah, and the corresponding verb is actually kriya, actually is rejoicing. और उसका जो उस संज्ञा का जो क्रिया है वो है आनंद. So when you have joy, they rejoice. और जब हमारे मन में खुशी है तो आनंद है तो हम मगन होते हैं. When we talk about the joy of salvation, we have to understand that in the Greek language, there are different words used for joy of salvation and normal joy. और जब हमें उद्धार के आनंद के बारे में जब हम यूनानी भाषा में पढ़ते हैं तो इसका काफी अलग-अलग तरह से इसके अर्थों को समझाया गया है. Very important to understand this. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें. For example, in 1 Peter chapter 1 from verse 3 we read, Peter writes, पहला पत्रस पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत में हम इस रीति से पढ़ते हैं. Oh God, in great mercy, He's given us new birth into a living hope. और हमारे प्रभु ने जो अनुग्रह का दाता है उसने हमें नए जीवन में जीवन दिया है, जन्म दिया है. To the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance can never perish, spoil or fade, kept in heaven for us. और जो हमारा उद्धार है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता. So this new birth is into a living hope. और ये नया जीवन नई आशा को लेकर आता है. A living hope, जीवित आशा actually. जीवित आशा को लेकर आता है. This new birth, the living hope is into, see, every birth is into something. A physical birth is into the world. और जैसे एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पे शारीरिक जन्म होता है, ऐसे ही नया जन्म हमें प्रभु यीशु मसीह के घर में जन्म देता है. Physical birth is into the world. और जो शारीरिक जन्म है वो पृथ्वी पे जन्म है. Spiritual birth is into a living hope. और आत्मिक जन्म स्वर्गीय बातों में आशा में जन्म है. To the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance can never perish, spoil or fade, kept in heaven for us. और जो नया जन्म है वो हमें जो मिरास हमारे लिए स्वर्ग में रखी गई है वो कभी नष्ट नहीं होगी. In verse 6 and 7, 6 was especially, Peter writes, in this you greatly rejoice. और छठी आयत में विशेषकर पत्रस लिखते हैं कि इस उद्धार के आनंद में तुम बहुतायत से आनंदित हो, मगन हो. Though now for a little while we have to suffer grief in all kinds of trials. और इस समय हम कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास होते हैं. In this world we have all kinds of trials. इस पृथ्वी पर हमें बहुत तरह की परीक्षाएं होती हैं. But Peter writes, in this you greatly rejoice. That means we rejoice because we have a new birth into a living hope, because Christ rose from the dead and we have got an inheritance in heaven. और इसलिए पत्रस कहते हैं कि तुम इसमें मगन होते हो क्योंकि तुम्हें उस आशा है, तुम्हें जिसमें तुम्हें नया जन्म प्रभु यीशु मसीह में मिला है, इसलिए तुम आनंदित होते हो. And this word rejoicing here is a very distinct word called agalaio in Greek, A-G-A-A-L-L-I-A-O, agalaio. यहाँ पर जो मगन होने का जो अर्थ है वो यूनानी शब्द अगलायो में से लिया गया है. It means exceeding joy, jumping for joy. It is exulting. इसका अर्थ है कि बहुतायत की खुशी या हम उछलते कूदते हुए आनंदित और मगन होते हैं. When you think of the fact that they're all earmarked to go to heaven, it results in exceeding joy, jumping for joy, exulting in joy, excessive joy. और जब हमें ये महसूस होता है कि हम स्वर्ग जा रहे हैं तो इससे हमें हमारा आनंद इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हम आनंद से खुशी से उछलने लगते हैं. Elsewhere in the Bible, the word for rejoicing is a word, for example, in Cairo. The word joy is chara, C-H-A-R-A in Greek, chara or kara. और जो दूसरा आनंद के विषय में जो यूनानी शब्द है वो है चारा या कारा. I don't know how to pronounce it, but it's C-H-A-R-A in English, kara. हाँ, वो अंग्रेजी में C-H-A-R-A अर्थात वो कारा भी बोल सकते हैं, चारा भी बोल सकते हैं. That's a word for joy. The corresponding verb, rejoicing, is actually Cairo, C-H-A-I-R-O, Cairo. और उसका जो दूसरा जो शब्द है वो है कायरो, वो यूनानी शब्द है.
And kairo means being cheerful. उसका मतलब है आनंदित होना, वो भी आनंदित ही होना है। And kara means cheerfulness. और कारा का मतलब है कि मन आनंदित होना। That's the normal joy of a Christian because we belong to Him. God has blessed us. We belong to Him, so we have joy. Always we can have joy. और इस तरह से एक मसीही जिसको प्रभु यीशु मसीह का वरदान मिला है वो आनंदित और मगन होता है, हमेशा आनंदित रहता है अपने But the rejoicing that comes from knowing they're going to go to heaven is jumping for joy, exulting in joy, excessive joy. लेकिन जो हमें ये कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ उसकी जो खुशी है वो एक ऐसी खुशी है जो हमें आनंद से उछलने, That is joy of salvation. और वो है उद्धार का आनंद, वो है उद्धार का आनंद। And therefore, when we always remember that this life in this world is temporary, I don't know how many years we live, 60, 70, 80, 90 years, then we go to heaven. और हम जो इस पृथ्वी का जीवन है वो हमारा कुछ समय का है, वो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। हम कितने दिन यहाँ पर रहेंगे हमें नहीं मालूम। And the assurance of our salvation is the fact that Christ lives in us. लेकिन हमारा जो आश्वासन है, उद्धार का जो आश्वासन है वो ये है कि हम प्रभु के साथ सर्वदा रहेंगे। At the point of time we accept Christ into our hearts as Savior and Lord. और जिस दिन हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, At that point of time we became the children of God. John chapter 1 verse 12. उसी समय उसी क्षण हम अपने प्रभु के संतान हो जाते हैं। वर्स John chapter 1 verse 12. Yeah. So यूहन्ना 1:12, when we believe in Jesus and receive Him into heart as Savior and Lord, we become the children of God. जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं उसी क्षण हम प्रभु यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं। Till that point of time we are not the children of God. We are the creation of God. We went away from God. We become God's children at the point of time we receive Him into our hearts as Savior and Lord. और उस समय तक हम प्रभु की संतान नहीं हैं, हम प्रभु की सृष्टि हैं, सृजी हुई वस्तु हैं। और लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं उस वक्त से हम प्रभु की संतान बन जाते हैं। To elaborate that verse even more, let's go to John chapter 1, 10, 11, 12, 3 verses. I'll quote. और इसको और अच्छे से समझने के लिए हम यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय उसकी 10, 11 और 12 आयत को हम यूहन्ना 1 अध्याय 10, 11, 12 आयत को हम पढ़ेंगे। John writes about Jesus there. यूहन्ना लिखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। He came to that which was His own did not receive Him. वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। His own meaning the Jews. उसके अपने मतलब यहूदियों ने Own did not receive Him. Yet as many as received Him, who believed in His name, God gave the right to become children of God. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। Children born not of natural descent or human decision or a husband's will, but born of God. जो लोग बच्चे जो माता पिता की इच्छा से उत्पन्न होते हैं वो नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के इच्छा से जन्म लेते हैं। So that's the point of time a human being becomes the child of God when he believes in Christ and receives Christ into his heart. ये वो समय है जब एक मनुष्य परमेश्वर की संतान हो जाता है, जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लेता है। Nobody is a born Christian. We are all called to be born again Christians. कोई जन्मजात मसीही नहीं होता, हम सब नए जन्मे हुए मसीही कहलाते हैं। Unless we are born again, we can't enter God's kingdom, Jesus said. जब तक हमारा नया जन्म ना हो हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। At the point of time we receive Christ, at that point of time His Spirit enters our hearts. जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करते हैं उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे हृदय में आ जाता है। In Galatians chapter 4 verse 6, Paul writes, गलतियों 4 और उसकी 6 आयत में पौलुस लिखते हैं, because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts. The Spirit calls out, Abba, Father. क्योंकि हम प्रभु की संतान हैं इसलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा हमें दिया कि हम उसे ऐ अब्बा, ऐ पिता कहकर पुकारते हैं। So at that point of time, Christ through the Spirit enters our hearts
to be in us forever. और उसी क्षण प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं सदा सर्वदा निवास करने के लिए। And He'll never leave us. एंड वो कभी हमें छोड़ते नहीं, He lives in us. वो हमारे में जीवन जीते हैं, हमारे साथ रहते हैं। He's not just for us or with us, He's in us. वो हमारे लिए नहीं, लेकिन वो हमारे में रहते हैं। And therefore, every Christian must understand that Christ lives in him or her. और हर एक मसीही को ये जान लेना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मुझ में निवास करता है। Our bodies are temples of the Holy Spirit. हमारी देह, हमारी शरीर परमेश्वर का मंदिर है। And His Spirit in our hearts is a deposit guaranteeing our inheritance in heaven. और उनका जो आत्मा है वो बयाना है हमारे स्वर्गीय मिरास का। Colossians 1:27, Paul writes, कुलुसियों 1:27 में पौलुस ऐसा लिखते हैं, Christ in you, the hope of glory. जिन पर परमेश्वर मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Because Christ lives in us, we have the hope of glory. क्योंकि मसीह हम में रहता है, हमें महिमा की आशा है। God has assured us of our salvation because His word says so. प्रभु ने हमें आश्वासन दिया है उद्धार का, क्योंकि उनके वचन में लिखा है। His Spirit is a guarantee of our inheritance in heaven, salvation. और उनका आत्मा जो है वो बयाना है हमारे स्वर्गीय मिरास का। So we have the hope of glory. इसलिए हमें महिमा की आशा है। In Romans chapter 5 verse 2, Paul writes, रोमियो 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में पौलुस ऐसे लिखते हैं, we rejoice in the hope of the glory of God. वो कहते हैं कि हम विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। And therefore we rejoice, we have joy in the fact Christ lives in us, and we rejoice because of that. क्योंकि मसीह हमारे अंदर रहते हैं, इसलिए हम आनंदित होते हैं उसमें। So actually when we talk about worshiping and praising God, many Christians say, what should I praise God for? Things are very bad around me. I don't know what to praise God for. The most important gift is given us of salvation. Why can't we praise God for that? बहुत सारे मसीही लोग कहते हैं मैं किस लिए आराधना करूं, किस लिए धन्यवाद दूं, मेरे चारों तरफ तो इतनी बुराइयां घट रही हैं, मैं क्यों। लेकिन सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, हम उसलिए प्रभु की आराधना करें। Many Christians compare themselves to other Christians in the context of material blessings. बहुत सारे मसीही लोग दूसरे मसीहियों से जो भौतिक वस्तुएं हैं उसके ऊपर तुलना करते हैं। We don't thank God for the spiritual blessings He's given us. लेकिन हम उन आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद देना भूल जाते हैं। In Ephesians chapter 1 verse 3 we read, He has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. इफिसियों 1:3 में हम ऐसे पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। When you remember who God is to us and who we are to God, और जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर कौन है और हम परमेश्वर के लिए क्या हैं, we can always rejoice in Him and praise Him for who He is and who He has made us to be. और हम फिर हमेशा आनंदित रहते हैं उनमें, और इस बात में आनंदित रहते हैं कि उन्होंने वो कौन है और हमें उन्होंने क्या से क्या बना दिया। That's why in 1 Thessalonians in chapter 5 verse 16 Paul writes, इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में पौलुस ऐसे लिखते हैं, Rejoice always. सदा आनंदित रहो। Bad circumstances or good circumstances, we rejoice always. चाहे परिस्थिति कैसी हो, बुरी हो भली हो, हम आनंदित रहें। Because always God loves us. क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमेशा हमें प्रेम करते हैं। Always He lives in us. वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। Always every good promise of God is ours. और जितनी भली आशीषें प्रभु यीशु मसीह में है वो सब हमारी हैं। Nothing can separate us from the love of God. और कुछ भी हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Therefore we are always cheerful. इसलिए हम हमेशा आनंदित रहें। Always you can have the rejoicing, the Cairo rejoicing. और इसलिए हम हमेशा उछलते और आनंदित और मगन होते रहें। But when we meditate upon the fact that when we leave this world we're going to go to heaven, then we have exceeding joy. और लेकिन जब हमें ये सच्चाई को हम महसूस करते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं, तो वो हमारे बहुतायत का आनंद बढ़ जाता है। That is agalaio, that is jumping for joy, exulting in joy, exceeding joy.
वो अगलायो शब्द है उसके लिए, उसका अर्थ यह है कि आनंद से उछल जाना, ऐसे That हम is the उछलते joy of कूदते, salvation. और ये है उद्धार का आनंद। Now, about this joy, Peter wrote to the Christians living in that area, Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia, 5 areas. और जब पतरस जब ये पत्री लिख रहे हैं, तो जो एशिया और उसके आसपास के 5 स्थान हैं, वहां पर लोग रहते हैं, उन्हें वो ये पत्री लिख रहे हैं। Those people have not physically seen Jesus, और उन लोगों ने भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था। although Peter had been with Jesus for 3.5 years in Capernaum. लेकिन पतरस जरूर प्रभु यीशु मसीह के साथ कफरनहूम में रहे, But these people had not seen Jesus, लेकिन इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखा, but had exceeding joy. लेकिन उनको बहुतायत का आनंद था। And in 1 Peter chapter 1, 8 and 9, Peter writes, पहला पतरस पहला अध्याय उसकी 8 और 9 आयतों में पतरस ऐसे लिखते हैं, even though you have not seen him, you love him. उसे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो। If you don't see him now, even though you don't see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन और से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। For you receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। So the goal of our faith is salvation of our souls, not the things of this world. तो हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो है आत्मा का उद्धार प्राप्त करना, ना कि इस पृथ्वी की आशीषें। To the Corinthians, the Apostle Paul wrote in 1 Corinthians chapter 15 verse 19. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में पौलुस ने कुरिन्थियों के विश्वासियों को ऐसा लिखा, If only for things of this world you have hope in Christ, you should be pitied more than all people. वो लिखते हैं 19वीं आयत में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। God does give us things of this world. He gives us food, shelter, clothing, things we need. But if I focus only on those things, then our joy will be up and down, up and down. Happiness be up and down. प्रभु हमें इस पृथ्वी की आशीषें भी देते हैं, प्रभु हमें कपड़ा, मकान और भोजन वस्तु सब देते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं बातों में लगे रहेंगे तो जरूर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से आएंगे। It's very important for every believer to set apart some time and alone with God to keep on thanking God and meditating upon the hope of our salvation. और इसीलिए हम में से हर एक विश्वासियों को चाहिए कि अपने दिन का एक हिस्सा हम अलग करके रखें प्रभु यीशु मसीह के साथ अकेले बिताने के लिए, जिसमें हम सिर्फ प्रभु को धन्यवाद दें जो आशीषें उन्होंने हमारे जीवन में दी हैं उसके लिए। Then we'll have the joy of salvation, not just joy of the earthly blessings. ताकि हमें उद्धार का आनंद मिले, ना कि इस पृथ्वी के भौतिक वस्तुओं की आशीषों का आनंद। Now the spiritual gifts like peace and joy are given to us simply because you come to believe in Jesus. और आत्मिक आनंद जो है, शांति और आनंद जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं, ऐसे ही देते हैं सिर्फ इसलिए कि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। These are spiritual blessings. ये आत्मिक आशीष हैं। Peace and joy given to us at the point of time we accept Jesus. जिस क्षण हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारे मन में शांति और आनंद प्रभु देते हैं। Thereafter we are called to live for him. और उसके बाद फिर हमें बुलाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवन जिएं। We live for him, and thereby by living for him we preserve constantly this peace and joy of the Lord. और जब हम उनके लिए जीना शुरू करते हैं तो हमारे मन में शांति और आनंद लगातार बने रहते हैं। Very often I refer to these two verses in the Bible where Jesus spoke in the last 1 week of his physical life on this earth to the apostles. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी के जीवन के आखिरी सप्ताह में अपने चेलों से बहुत समय इन दो शब्दों के ऊपर चर्चा किया। In John 16:33 he says, I've told you these things that in me you will have peace, in the world you will have troubles. और प्रभु यूहन्ना 16 और उसके 23वें आयत में प्रभु अपने चेलों से कहते हैं, 33वीं आयत में कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। In John chapter 15 verse 11 we read, यूहन्ना 15 और उसके 11वें आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं,
Here the Lord says, I've told you this, that my joy will be in you and your joy will be complete. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए. What's very interesting is he spoke about his joy, which is given to us, and his peace. John 14:27. और फिर प्रभु यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने अपना आनंद हमें दिया है और यूहन्ना 14:27 में वो कहते हैं अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ. There he says, peace I leave with you, my peace I give unto you. 14:27 में वो कहते हैं मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ. My peace I give unto you. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ. I don't give as the world gives. Don't let your hearts be troubled. Don't be afraid. जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता. तुम्हारा मन न घबराए और न डरे. There's an awesome, mind-boggling possibility, reality that when we walk in the ways of God, we'll have the same peace Jesus had, the same joy he had. और ये बहुत ही अद्भुत बात है हमारे लिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, तो वही आनंद और वही शांति जो प्रभु यीशु मसीह की थी, वही आनंद और वही शांति हमारे जीवनों में निवास करती है. This peace and joy is in the Holy Spirit. वही शांति और आनंद जो है ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, पवित्र आत्मा है. That's the kingdom of God. और ये है परमेश्वर का राज्य. Romans 14:17 says, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मिलाप और वो आनंद है. Peace and joy in the Holy Spirit. Don't forget that. इस बात को हम हमेशा याद रखें, पवित्र आत्मा में ये होता है. And the Lord sets a perfect example for us. और प्रभु यीशु मसीह ने एक बिल्कुल सिद्ध उदाहरण हमारे लिए स्थापित किया. In Luke 10:21, he manifested the joy of the Holy Spirit. और लूका 10 और उसके 21वीं आयत में प्रभु ने आत्मा में भरकर हमसे कहा, हमें दिया. No. He manifested joy of the Lord to the Spirit. उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा. Okay, there he tells the Father in heaven. In वो वहां कहते हैं, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया. हाँ हे पिता, क्योंकि वे तुझे यही अच्छा लगा. That verse begins by saying, at that time Jesus, full of joy through the Holy Spirit, says to the Father in heaven. और यहाँ ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा में भरकर आनंदित होकर प्रभु यीशु मसीह भर गए और फिर पिता से कहा. So the Holy Spirit actually enables us to follow the Lord, enables us to obey the Lord. इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलें और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें. We walk in the ways of God, we preserve the peace and joy the Lord has given us. और जब हम प्रभु के यीशु मसीह के पीछे उनके मार्गों में चलते हैं तो हमारे मन में आनंद और शांति बनी रहती है. Now, can we lose the joy of salvation? लेकिन हम कैसे उद्धार के आनंद को खो देते हैं? Can we lose salvation? क्या हम उद्धार को खो सकते हैं? We don't lose salvation, we can lose the joy of salvation. हम कभी उद्धार को नहीं खोते, हम उद्धार के आनंद को खो देते. Because salvation is a gift of God given to us. क्योंकि उद्धार जो है वो परमेश्वर का एक दान है, हमें दिया है, गिफ्ट है, तोहफा है. And once he gives a gift, he will not take back. Romans 11:29. और जो उन्होंने गिफ्ट हमें दे दिया, दान हमें दे दिया, वो वापस नहीं लेंगे. रोमियो और उसका 11 और 29. रोमियो 11:29 में हम ऐसा पढ़ते हैं. Okay, now preserving the joy of the Lord is conditional to obedience. और अगर प्रभु यीशु मसीह के आनंद को हमें बने रहना है तो हमें आज्ञाकारिता के साथ प्रभु के पीछे पीछे चलना है. That's why he taught the apostle. He said, I've told you this, that my joy will be in you and joy will be complete. और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि इस कारण से तुम्हारे अंदर आनंद और शांति बनी रहेगी. Let's go back to the Old Testament. अब पुराने नियम की तरफ देखें. Let's look at David. हम दाऊद की ओर देखें. He was a man after God's own heart. वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति हैं. And being a man after God's own heart, he called upon the Christ in the context of guilt, in the context of fears.
और उसने वो प्रभु यीशु मसीह के हृदय के अनुसार व्यक्ति होते हुए भी अपने पापाभास को और अपने जीवन को वो प्रभु यीशु मसीह की ओर मुड़ करके वो कहते हैं। His Lord was actually the Christ. और वो जो लॉर्ड वहां पर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है। For example, in Psalm 110 verse 1, he says, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make enemies a footstool for your feet." और भजन संहिता 110 और उसके पहली आयत में वो ऐसे कहते हैं, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। And when he says "मेरे प्रभु," that प्रभु refers to Christ. और जब यहाँ पर वो मेरे प्रभु कह रहे हैं तो इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह। And being a man after God's own heart, he knew about the salvation in Christ and called upon the Christ. और ये परमेश्वर के हृदय के अनुसार व्यक्ति होने के कारण से वो प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह से निवेदन या प्रार्थना भी करते हैं। In Psalm 32 verse 1 to 5, he calls upon Christ in the context of sin and guilt. भजन संहिता 32 और उसकी 5वीं आयत में Was 1 to 5. उसकी 32 और उसके 32 और 5 में ऐसा लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। Okay. And then in Psalm 34 verse 4, he says, I sought the Lord, he answered me, he delivered me from all my fears. और भजन संहिता 34:4 में कहते हैं, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। So David believed in Christ. तो यहाँ हम देखते हैं दाऊद जो है वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। Even before Christ entered the world. इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, वो विश्वास करते हैं। And therefore he had the assurance of salvation. और इसीलिए उनको आश्वासन है उद्धार का। Now when he sinned against God, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, remember Psalm 51 he wrote about when he repented, how he wrote that psalm, beautiful psalm. और भजन 51 हम याद करें कि उन्होंने कितना सुंदर भजन लिखा जब उन्होंने मन से पश्चाताप किया। And verse 12 he writes, 12वीं आयत भजन 51:12 में वो लिखते हैं, restore to me the joy of salvation. कहते हैं अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। Because he lost the joy of salvation. क्योंकि उसने उद्धार का आनंद खो दिया था। He doesn't say restore to me salvation. उन्होंने नहीं कहा कि मेरे उद्धार को मुझे लौटा, उन्होंने कहा नहीं कहा। Salvation is there, but not the joy of salvation. उद्धार तो वहीं का वहीं बना है, लेकिन उद्धार का आनंद खो गया है, हर्ष खो गया है। And also he says, take not thy Holy Spirit from me. और फिर वो कहते हैं कि अपना उदार आत्मा मुझसे फिर लेना छीन ना ले। He had sinned before. उसने परमेश्वर से के सामने पाप किया। And he prayed that prayer, take not the Holy Spirit from me. At that time, he did have the Holy Spirit living in him. और जब वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझसे अपनी आत्मा को छीन न लेना, इसका अर्थ ये है कि उस समय उनके पास आत्मा है, पवित्र आत्मा उनके पास है। He said, don't take away the Spirit. He's with me, don't take him away. वो कहते हैं कि मुझसे ये आत्मा को मत छीन ले कृपया। Because he saw the experience of Saul earlier, when Saul sinned against God, Spirit left Saul. क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से इस उदाहरण को देखा था कि शाऊल से परमेश्वर का आत्मा उठ गया था। In the case of David, he said, do not take the Holy Spirit from me. लेकिन दाऊद अपने संबंध में कह रहे हैं, मुझसे आत्मा मत छीनना। Rather, restore to me the joy of salvation. लेकिन वो कहते हैं मेरे हर्ष के उद्धार के हर्ष को मुझे लौटा दे। And even as they repented, we see what a beautiful life David led after he repented. और उसके बाद जब उन्होंने मन से पश्चाताप किया, फिर हम देखते हैं कितना खूबसूरत जीवन उन्होंने परमेश्वर के साथ जिया। In 1 Kings chapter 15 verse 5, we read about how the Lord testifies about David's life after he repented. पहला राजा उसके 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसा verse 5 और उसकी 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि कैसा क्योंकि दाऊद वह किया करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। There the Lord testifies about David. और फिर यहाँ पे प्रभु का भी वचन उनके लिए कह रहे हैं कि वो किसी बात में फिर यहोवा की आज्ञा से नहीं मुड़ा। It says that for David had done what right in the eyes of the Lord. वो वहां पे ऐसे कह रहे हैं जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था दाऊद वही किया करता था। Had not failed to keep any of God's commandments. और वो परमेश्वर की किसी आज्ञा से जीवन भर नहीं मुड़ा।
all the days of his life, except in the case of Uriah the Hittite. Uriah was the husband of Bathsheba. अपने जीवन भर वो नहीं मुड़ा, सिर्फ एक कारण से, हित्ती उरिया जो बतशेबा का पति था. And he arranged Uriah's murder. That displeased God very much. और उसने उरिया को मरवा डाला. ये परमेश्वर बहुत इससे अप्रसन्न हुए. So today when we sin against God, we lose the joy of salvation. We don't lose salvation. आज जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, हम उद्धार के आनंद को खो देते हैं, ना कि उद्धार को खोते हैं. But then when we repent of our sins, the joy is restored. लेकिन जब हम मन फिराते हैं, पाप का अंगीकार करते हैं, वो हमारा आनंद फिर हमें लौटा देते हैं प्रभु. Like I said today, that when we sin against God and we repent, joy is restored. And today when we sin, we don't have guilt, we'll have a godly sorrow. और फिर जब हम प्रभु के सामने, जैसा भाई ने कहा कि हम मन फिराते हैं, तो वो हमारे हर्ष को, आनंद को, उद्धार के आनंद को लौटा देते हैं. यानी कि इसका मतलब है कि इसके बाद फिर हमें वो आभास नहीं रहता कि मैंने पाप किया, वो सब मिटा देते हैं उसको भी. God never produced in us a guilt. He'll never produce guilt in us. प्रभु हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न नहीं करते कि हम अपने आप को पापी मानते रहें. The Holy Spirit produce godly sorrow in us. लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर भक्ति के शोक को उत्पन्न करता है. And godly sorrow brings repentance and leads to salvation and leaves no regret. और जो भक्ति का जो शोक है, वो हमें पश्चाताप के लिए और फिर हर उद्धार के हर्ष को प्राप्त करने के लिए लेकर चलते हैं, बढ़ाते हैं. 2 Corinthians 7:10 tells us that. दूसरा कुरिन्थियों 7 और 10 में हम इसको पढ़ते हैं. So today when you do something wrong against God, when you have the godly sorrow, we call upon Jesus' name even today. और जब हमारे अंदर शोक ऐसा, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता. Sometimes people have this doubt that Jesus died 2000 years ago. कभी-कभी लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि प्रभु यीशु मसीह तो 2000 साल पहले मरे थे. I have sinned today. और मैंने आज पाप किया. How can my today's sin be cleansed 2000 years ago? कैसे मेरे आज का पाप 2000 साल पहले मिटा दिया गया? ये कैसे हो सकता है? In Hebrews 7:25 we find the answer. इब्रानियों 7 और 25 में इसका उत्तर हम पढ़ते हैं. There the writer writes about Jesus. लेखक लिखते हैं, He is able to save completely those who come to God through him because he always lives to intercede for them. वहां पर ऐसा लिखा है, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है. Today the Lord is alive, at the right hand of God the Father is interceding for our sins. हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में है और हमारे लिए प्रार्थना विनती कर रहे हैं. So it's very easy for us to preserve this joy of salvation. तो ये बहुत आसान है कि किस रीति से हम अपने उद्धार के आनंद को बरकरार रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं. Salvation the Lord preserves. जो उद्धार है वो तो प्रभु उसको बचा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं. Because Hebrews 12:2 says Jesus is the author and finisher of our faith. क्योंकि इब्रानियों 12:2 में ऐसा लिखा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वही उद्धार करता और सिद्ध करने वाला यीशु है. He preserves our salvation, the Lord. वो हमारे उद्धार को बचाए रखते हैं, संभाले रखते हैं. But we are called to preserve the joy of salvation. लेकिन हमसे कहा गया है कि हम हमें अपने उद्धार के आनंद को संभाले रखें या बचा कर रखें. With the help of God who enables us to walk in the ways of God. और हम परमेश्वर की सहायता से इस काम को कर सकते हैं, जो हमारी सहायता करते हैं कि हम उनके मार्गों में चल सकें. Now when we walk in the ways of God, we have difficulties in life. जब हम प्रभु के मार्गों में चलते हैं तो हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं. When we obey the Lord, we will face difficulties. जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. And some people look at the difficulties and suffering and then lose the joy. और कई लोग इस कठिनाइयों को या परेशानियों को या दिक्कतों को देखते हैं तो फिर उनका आनंद खो जाता है. We don't realize the purpose of God in trials because of our obedience. और हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि प्रभु की इसके पीछे क्या मनसा है, क्या इच्छा है, इस परेशानियों कठिनाइयों के पीछे क्या इच्छा है. In 1 Thessalonians 5:16 says, rejoice always. पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 16 में हम पढ़ते हैं कि सदा आनंदित रहो. And rejoicing there is kairo, which means cheerfulness. और जो इधर जो आनंद है वो कायरो शब्द है
इसका मतलब है आनंदित रहना। Corresponding noun is cheerfulness. और इसके लगी हुई जो संज्ञा है वो भी आनंद ही है। That is आनंद, joy. That is joy. एक तो आनंद है। I told you rejoicing is a verb, and, joy is a noun. हाँ, इसमें आनंद और मगन होना, आनंदित रहना और मगन होना। Now, when we obey God and we have the joy of the Lord and we face difficulties, people look at difficulties and lose their joy. और जब हमारे जीवनों में कठिनाइयां और परेशानी आती हैं, उस दौरान जब हम आनंदित रहते हैं तो लोग हमारे जीवनों को देखते हैं कि कैसे विषम परिस्थितियों में भी हम आनंदित हैं। Now, how do you preserve the joy in difficulties? लेकिन कठिन समय में आप अपने आनंद को कैसे बनाए रख सकते हैं? James chapter 1, 2, 3, 4, we read. याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 1, 2 और 3 आयतों में हम पढ़ते 2, हैं। 3, 4. 2, 3 and 4. 2, 3 और 4 आयतों में हम पढ़ते हैं। Consider pure joy when you face trials of many kinds, for the testing of your faith develops perseverance. Perseverance finishes work in you, that you be mature and complete, not lacking anything. So could you read from the Bible, brother? James chapter 1, 2, 3, 4. I'll read. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद means pure joy, complete joy. पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पूरे आनंद। In fact, we have completeness in Christ, maturity in Christ when we go through trials because of our obedience. और जब हम अपनी आज्ञा मानने के कारण से परीक्षाओं में से होकर, नाना प्रकार की परीक्षाओं में से होकर के गुजरते हैं, तो हमारा आनंद पूरा हो जाता है और हम पूरी रीति से सिद्ध बन जाते हैं। Always you're called to rejoice. Rejoice always, Bible says. और इसीलिए कहा गया है सदा आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। In normal circumstances, we rejoice. जो जब सामान्य स्थिति होती है तो हम बड़े आनंदित रहते हैं। But when we face difficulties because of obedience, then we consider pure joy, so exceeding rejoicing. लेकिन जब हमारे विषम परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, और उस समय में हम जब आनंदित होते हैं तो वो आनंद जो है वो हमारे और उद्धार के भरपूर आनंद को बढ़ा देता है, पूरे आनंद को बढ़ा देता है। To practically manifest this life in Christ, we should be walking with the Spirit of God, in step with the Spirit of God. लेकिन अगर हमें इस जीवन को पाना है तो हमें उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर पवित्र आत्मा के द्वारा से चलना है। Only in close intimacy with God will manifest whatever I've been sharing in the last 45 minutes. प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी संबंध के साथ जब हम चलते हैं तो तभी हमारा ये आनंद बढ़ता है। This fellowship with God is a discipline. और ये अनुशासन हमारे जीवन में अनुशासित जीवन को दर्शाता है, दिखाता है। Peace and joy is in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर में आनंद और शांति। To be able to follow the Lord is only with the help of the Holy Spirit you can do that. अगर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पा रहे हैं तो सिर्फ पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से। The Lord does not want us to lose the joy of salvation. परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम परमेश्वर के उस उद्धार के आनंद को खो दें। Like I told you, He preserves salvation for us. और दूसरे शब्दों में वो हमारे उद्धार को संभाल कर या बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं। But we have to preserve the joy of salvation by obeying. लेकिन हमें आज्ञाकारिता के द्वारा से अपने उद्धार को के आनंद को हमें बनाए रखना है। To be able to obey Him, we must seek His Holy Spirit's help because He sanctifies us. और अगर हमें उनकी आज्ञाओं को पालन मानना है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता से हम मान सकते हैं, जो हमारे उद्धार को बनाए रखते हैं। When we fail to obey Him, we have the blood of Christ cleansing us, and therefore there is no condemnation for us. और जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं तो फिर वो हमें सारे दंड से छुटकारा देते हैं, क्योंकि जो मसीह में उनमें दंड की आज्ञा नहीं है। In 1 Peter chapter 1 verse 2 we read. पहला पत्रस 2 और 1 में हम पढ़ते हैं। Chapter 1 verse 2. पहला पत्रस 1 और 2 में हम पढ़ते हैं। We are chosen by the foreknowledge of God the Father. परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार through the sanctifying work of the Spirit, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, for obedience to Jesus Christ,
आज्ञा मानने और यीशु मसीह की आज्ञा मानने and sprinkling by his blood. Let's not forget that. और उसके लहू के छिड़के जाने, इसको हम कभी ना भूलें। Our hope is always on the grace of God or the blood of Christ, not our holiness. और हमारी जो छुटकारा है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा से है, ना कि हमारे धार्मिकता के कामों से। So it's very simple for us to preserve the joy and peace of salvation. इसलिए बहुत ही आसान है हमारे लिए कि हम अपने हर्ष को, उद्धार के हर्ष को हम बनाए रख सकते The हैं। Christian life is not just a life free of guilt, it's a life of peace and joy when we walk in the ways of God. तो मसीही जीवन जो है वो पाप बोध का जीवन नहीं है, वो आनंद और शांति का जीवन है। May God bless us as we take His word seriously, and I would like you to meditate upon this word, whatever we shared today. And you get a copy of the recording because it's rather difficult, I think, to really internalize it. So spend some time meditating upon whatever verses I've shared. और भाई कहते हैं कि इन बातों को हम भूलें नहीं, इसको हम याद रखें, क्योंकि एकदम से समझ लेना ये कठिन है। इसके ऊपर मनन करते रहें, चिंतन करते रहें, और हम इसको जब हम मनन करेंगे तो इसको और समझते चले हम। You may like to get the recording and then listen to once again and really see where you stand in terms of joy of salvation. Salvation, yes. What about joy of salvation? और इसको हम मनन करते हैं। भाई कहते हैं कि हम अपना जो रिकॉर्डिंग भी है वो हम आपको दे देते हैं, ताकि आप इसको और दोबारा सुने और इसके ऊपर ठीक से मनन कर सकें। God bless you all. आप सबको प्रभु